Hello, everyone, and let's start with a session which was much in demand these days. When somebody plans to do MDS in oral medicine and radiology, let's listen from the stalwart Dr. Sumit Goyal, sir, professor in OMR in the Subharti Dental College, Meerut, and PG guide, favorite teacher of OMR across the country, teaching, mentoring MDS aspirants for more than a decade now. Please let us welcome Dr. Sumit, sir, once again. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स और आप ही की वजह से आई एम एबल टू टीच सो Please, मेनी sir. स्टूडेंट्स एंड आई लिटरली फील दैट द अमाउंट ऑफ गुड वर्क आप जो कर रहे हैं एंड दी स्टूडेंट्स हु आर स्टूडेंट्स इन फैक्ट हु आर अटेंडिंग माय क्लासेस दे आर रियली गुड एंड they participate so nicely in all the discussions and all, and I'm sure most of them must have fallen in love with this branch as well. But Sir, yes, whether you know this or you don't know, I'm like, it's a statement which everyone knows across the other side of you and should know if they don't know. Dr. Sumit Goyal, sir, is the most favorite teacher in Team BDS to MDS and has been favorite teacher and aspiring many MDS aspirants every year. Thank you so much. Thank you. Thank you. I hope I can do some justice to this session as well. Coming to this session, this is about if somebody, sir, is planning to take MDS, oral medicine and radiology. There are many questions I have for you tonight, and let us take one by one. What is the scope of the branch OMR when it comes to the word OMR? What exactly you wish to say on that? Uh, पहली बात तो there is a small disclaimer which I wanted to add here that PG you should always do in a branch which is of your choice, which is of your like whichever branch you feel is this best suited for me. You should always go and do post graduation in that specific branch. And my prime motive of today coming here and discussing with you is not that I am saying that you should do PG in OMR. My prime motive is those who are interested to do PG in OMR and those who are getting an option or those who are getting option to do PG in OMR, what benefits they can get after they do PG in this branch. See, as an oral medicine specialist, I am one person who love my branch very much. I do specialty practice as well, apart from general dentistry, which though I do also, and जो हमें करना भी है. But then because I love this branch, I am doing my specialty practice as well. And I really feel that until and unless you step into someone's shoes or until and unless you go and start studying that particular subject in depth, you will never understand the prospects, the scope, the success, and everything regarding that branch. And I literally feel those students who I know who have done post graduation in this branch, not I'm saying from my college, I am professor in Subharti Dental College. I'm not saying that those who have done from my college, but across India, whosoever has done MDS in oral medicine and whosoever come in contact with me, everyone trusts me. They say that this is one branch that is super. Like we are very happy that we did post graduation in this branch. अब बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं और हम इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें बोलेंगे ही, बट बिफोर आई टेल यू द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच आई वांट टू स्टार्ट दिस सेशन बाय सेइंग कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है जो मेरी इस ब्रांच के साथ अटैच्ड है, दैट इज इट इज अ नॉन क्लिनिकल ब्रांच. Non-clinical. So I was about है ना? to ask, OMR ये वाला clinical branch है, non-clinical branch है. Please ये elaborate वाला on this. क्वेश्चन मुझे पता था कि आप जरूर पूछेंगे और मेरे को ये आंसर भी करने में बहुत मजा आएगा बिकॉज मैं आई स्टिल वांट टू मीट दैट पर्सन जिसने फर्स्ट टाइम क्लासिफाई किया होगा कि ये क्लिनिकल ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री है और ये नॉन क्लिनिकल ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री है. जिसने फर्स्ट टाइम ये क्लासिफाई किया होगा कि अगर हम टूथ पे कुछ काम कर पा रहे हैं तो हम क्लिनिकल हो गए और अगर हम एक पेशेंट को ट्रीट कर पा रहे हैं तो हम नॉन क्लिनिकल हो गए. और इतना इन्फ्लुएंशियल इंसान होगा वो जिसने इतना ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया. व्हेन इन 2006 एंड 7 व्हेन आई वाज अबाउट टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने तो कभी सुना ही नहीं था दैट दिस इज क्लिनिकल, दिस इज नॉन क्लिनिकल. मैंने केवल 9 ब्रांचेस ऑफ डेंटिस्ट्री सुनी थी जिसमें मैंने प्रोस्थो, एंडो, ऑर्थो, ओरल मेडिसिन, पीएचडी पीएचडी भी नहीं, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री बोलते थे हम तब, और ओरल पैथोलॉजी, ये टर्म सुने थे. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अब तो मैं वो ब्रांचेस के नाम ही नहीं सुन रहा हूँ. अब तो मैं केवल ये सुन रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, क्लिनिकल ब्रांच,
नॉन क्लिनिकल नहीं, क्लिनिकल ब्रांच में हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो वो स्पेसिफिक इंसान जिसने ये टैग लगाया उससे स्पेसिफिक मिलना है। क्योंकि अगर मेडिसिन की अगर हम बात करें, अगर हम एमडी एमएस या मेडिकल साइड की बात करें, तो वहां पे तो जनरल मेडिसिन नॉन क्लिनिकल ब्रांच नहीं है। वहां तो जनरल रेडियोलॉजी जो एक तरह से टॉप मोस्ट ब्रांच कही जाती है वो भी नॉन क्लिनिकल ब्रांच नहीं है। डर्मेटोलॉजी वो भी नॉन क्लिनिकल ब्रांच नहीं है। इवन जनरल पैथोलॉजी को वहां पे नॉन क्लिनिकल ब्रांच नहीं बोला जाता है। जब तक आप एनाटमी फिजियोलॉजी, जहां आप एक्चुअली आप केवल बेसिक लोगों को फर्स्ट ईयर में सिखा रहे हैं, वो नॉन क्लिनिकल कहा जाता है। बट तो जहां लाइक, पर आप, जी 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 जी, नहीं सॉरी सर, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं, उनको बेसिकली बोला सर, जाता है। बट जहां पर फर्स्ट आप कहीं पे कुछ कर रहे हैं स्पेसिफिक, वो आप ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, उसको आपने कब नॉन क्लिनिकल बोलना शुरू किया, ये मुझे समझ में नहीं आया। every एंड college पर्टिकुलरली, first patient walks into your department. एग्जैक्टली Every college. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वो क्यों बोलना शुरू किया गया वो मेरे को समझ नहीं आया। फिर उसके बाद मोरोवर, ठीक है, पीपल का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, कुछ समझदार लोगों ने कहा चलो विल कॉल इट एज अ पैरा क्लिनिकल ब्रांच और अ सब क्लिनिकल ब्रांच। बट आई विल Semi-clinical. स्टैंड बाय इट, इट इज अ क्लिनिकल ब्रांच, इट इज अ वेरी मच क्लिनिकल ब्रांच। एज एन ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट आई एम ट्रीटिंग माई पेशेंट्स नॉट ओनली विद मेडिसिन, देखो मेडिसिन से ऑल्सो आई एम ट्रीटिंग विद सो मेनी अदर प्रोसीजर्स नाउ डेज। And Like I sir. am a trained radiologist who's not only just interpreting an IOPA, I am interpreting 3D advanced technologies like CBCT, ultrasonography, MRI, everything. I'm diagnosing, I'm helping patients, and they are getting better. So I will call it as a clinical branch। जिसको जो बोलना है, जितना समझ है उसको, उनको वो ऐसा वो बोलेंगे, उसमें कुछ बदलेगा नहीं। बट यस, Then what are आप the अगर treatment मेडिसिन, modalities in oral medicine we are doing in OMR? एग्जैक्टली, सो अगर आप ओरल मेडिसिन में पीजी करेंगे देन ओनली यू कम टू नो दैट व्हाट ऑल वी डू। पहली बात तो मैं एक चीज ये बता दूं, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी तो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर में हमारे पास दो ब्रांचेस हैं। वी हैव ओरल मेडिसिन एंड वी हैव रेडियोलॉजी। So oral medicine and radiology is an umbrella term जिसके अंडर में दो branches हैं specifically. One is oral medicine and the other one is oral radiology. Now this oral radiology is specifically nowadays called as maxillofacial imaging, because we are not just dealing with simple 2D radiographs. अभी तो हम लोग 3D radiographs से ही deal कर रहे हैं, right? So if I talk about the subject oral medicine, the first part of it, जैसे आपने पूछा है that what all patients or what all cases do we treat? So So during oral MDS, medicine, what exactly you are doing, your PG is yes, doing in yes, the college? the curriculum part you're asking. Curriculum part, So yes. the part. So in oral medicine part, if we come to know, if we come to talk about, then it is not that we are just recording the case history and we are just referring the patient। जो बोला जाता है ना कि ये तो एक वैसी ब्रांच है जो पेशेंट का बस ओपीडी लिखकर इसको Critically. क्रॉनिक जनरलाइज जिंजिवाइटिस है एंड पेरियो में और डेंटल केरीज है तो एंडो में रेफर करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो हमें दिया गया है ओपीडी वाला पार्ट, थिंकिंग दैट वी आर बेस्ट टू डायग्नोज सच Sir, केसेस। sorry to बट say, देन, हमारे कॉलेज में भी एक टर्म बोला जाता था, OMR, प्लीज डोंट माइंड सर, एंड ऑल द विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट अक्रॉस द ग्लोब, कि एक टर्म था, मतलब इट वाज यूजुअली ऑन द फनी साइड, लाइक ये डिपार्टमेंट सिर्फ दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने के लिए बनाया गया भेजने के लिए है ये, पेशेंट को। करेक्ट। तो नहीं, व्हेन वही इन है कि पीजी हाउ द थिंग्स चेंज सर, व्हेन ड्यूरिंग द पीजी? एग्जैक्टली तो जब आप पीजी करते हो तब आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि दिस इज नॉट दैट थिंग कि आपको बस रेफर करना है। ओपीडी इज अ पार्ट ऑफ ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट, क्योंकि उनका डायग्नोसिस पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है। सो वन थिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट द डायग्नोसिस पार्ट इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज इफ 200 पेशेंट्स आर वॉकिंग इन योर डेंटल कॉलेज, दे ऑल आर कमिंग टू योर डिपार्टमेंट। And when you see 200 patient and you with different chief complaints and problems, your diagnosis part becomes very, very strong. And please understand that to run a dental clinic, see, the basic aim of our becoming doctor or becoming dental surgeon is that we need to do our practice. आजकल practice के बिना कुछ नहीं है. We all have to do general practice, right? And general practice is always successful when you are able to diagnose the problem correctly. If you don't know, you will not able to treat it properly, और पेशेंट्स के पास बहुत ऑप्शन है आज की डेट में। सो फॉर दैट थिंग
firstly, the diagnosis part becomes very strong. When I come or talk about the treatment, then there are so many diseases. And मैं आपको एक specific यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके जरूर बोलना चाहूंगा कि मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे जनरल मेडिसिन वाले हों, चाहे ईएनटी वाले हों, चाहे डर्मेटोलॉजी हैं, दे आर वेल वर्स्ड विद देयर फील्ड्स, बट व्हेन इट कम्स टू ओरल मेडिसिन, they are not treating them properly. Even diagnosis of an simple aphthous ulcer is not easy for general practitioners. और बल्कि मैं इसको अदर वे में बोलूं तो हर अल्सर को एप्थस अल्सर ही बना के भेजते हैं, जबकि अल्सर्स तो बहुत सारे तरीके के ओरल कैविटी में होते हैं. सो उनको पहचानना, उन सबको ट्रीट करना, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, राइट. एंड नॉट ओनली ट्रीटिंग विद मेडिसिन, केवल स्टेरॉइड्स देके मेडिसिन को इसको हम ठीक नहीं करते हैं. देयर आर सेवरल प्रोसीजर्स दैट वी परफॉर्म, जो मैं अभी आपको बताता हूँ. उसके अलावा देर आर सो मेनी प्री कैंसरस और विच वी कॉल देम एज पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स जो आप ट्रीट करते हो. टीएमजे, ओरोफेशियल पेन, एक इतना इंटीग्रल पार्ट है हमारी ब्रांच का जिसको ट्रीट करना इतना आसान नहीं है. But we are trained properly to treat such orofacial pain disorders. I'm not talking about odontogenic cases. I'm talking about non-odontogenic pain cases that we are being taught and treated. इसके अलावा छोटी सी छोटे पिगमेंटेशंस का भी ट्रीटमेंट इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम ऑफ ओरल मेडिसिन व्हिच वी आर फॉलोइंग एंड व्हिच वी आर डूइंग. salivary gland disorders, systemic diseases manifested in the oral cavity. तो बोला ही जाता है oral cavity is the gateway, और जो जो दिखाता है इनफैक्ट माउथ इज द मिरर. सो वो सारी डिजीजेस का ट्रीटमेंट ओरल मेडिसिन में किया जाता है. और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम प्राइमरीली बात करें हमारी इंडिया में क्या दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं. सो इंडिया में जो दो मेजर डिजीजेस हैं जो आज की इस जनरेशन में, चाहे यंग इंडिविजुअल्स हो चाहे एल्डरली हो, सफर कर रहे हैं, वो क्या है? द फर्स्ट इज यूज ऑफ टोबैको, and the second is the stress, which has become the major part of everyone's life. I always tell even my students कि आप लोग भी stressed हो, मैं भी stressed हूँ. इस दुनिया में हम सब stressed हैं. grade 1 डिप्रेशन में तो हम सब हैं. और जितना खतरनाक ये टोबैको है, जिससे हम बोलते हैं पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स एंड ओरल कैंसर होता है, उतना ही खतरनाक ये स्ट्रेस है. ऐसी ऐसी बीमारियां स्ट्रेस से होती हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, न्यूरोपैथिक पेन्स, मस्कुलर पेन्स, न्यूरोवैस्कुलर पेन्स, ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें ट्रीट करना सबसे डिफिकल्ट है. और सर मैं आपके इस सेशन के मैं माध्यम से ये बताना चाहूंगा दैट ये सारी प्रॉब्लम्स एक ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट ही ट्रीट कर सकता है. आपके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है. For your dental problems, for your gingival problems, for your endodontic problems, you have specific many people where you can go, because everyone is doing is practicing dentistry. But when it comes to such pains or such conditions, you need to have either an oral medicine specialist, or if you have to go for a surgical aspect, you need to have an oral and maxillofacial surgeon. So these things Basically, all like are being what you are done. saying is, does the PG curriculum of OMR also includes the basics, or you can say in-depth study of patho micro medicine also? Yes, that is what I'm telling. If I talk about the curriculum, so हमारा जो curriculum design होता है, आप फर्स्ट ईयर में थोड़े बेसिक सब्जेक्ट्स तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बिकॉज बिना बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़े आपकी ये ब्रांच में आप ट्रीट ही नहीं कर सकते. तो बेसिक नॉलेज स्टार्टिंग फ्रॉम फिजियोलॉजी, एनाटमी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जनरल मेडिसिन, वहां से बेसिक स्टडी स्टार्ट होता है. फिर आकर आप ओरल मेडिसिन में कुछ कर पाते हैं. बिकॉज आजकल ट्रीटमेंट ये नहीं है कि आप बस, जैसे मैं आपको बोल रहा था, मेडिसिन से आप ट्रीट कर रहे हो. आजकल देर आर स्पेशलाइज्ड मोडालिटीज टू ट्रीट. लेजर्स स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं, इट हैज बिकम सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ सो मेनी ओरल कंडीशंस. स्पेसिफिकली सॉफ्ट टिश्यू डायोड लेजर जो हम यूज कर रहे हैं, लेजर सर्च, आप लेजर से बायोप्सीज कर रहे हैं, अब्लेशंस कर रहे हैं. आजकल कोल्ड लेजर है, दैट इज कॉल्ड एज लो लेवल लेजर थेरेपी, जिससे इवन ओरोफेशियल पेन का ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है. एफ्थस अगर 3-4 दिन तक है, पेशेंट टॉलरेट करता है, उससे ज्यादा नहीं करता है, तो आप लेजर से उसको भी हटा रहे हो. So there are so many things which you are doing, you are working, और उसके बाद आप कैसे नॉन क्लिनिकल हो जाते हो. प्लस आप एक बात और मानिए, मैं ये हमेशा बोलूंगा कि whenever if you are doing a PG in oral medicine and radiology, ensure that you are doing from a college which has got a medical college attached to it. Very, very important, because as a curriculum in second year, you will be having your postings in the medical college, specifically in the medical hospitals. You'll be posted in dermatology department, you'll be posted in general radiology department, ENT department, because they all are linked. ये पूरा interdisciplinary linked departments हैं जो मिलकर एक पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं. सो यहाँ पर पोस्टिंग्स लगती हैं. यहाँ पर आप अपने जो भी म्यूकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर्स हैं, मतलब जो स्किन एंड ओरल कैविटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनको आप ट्रीट करना और स्पेसिफिक सीखते हो और सारे प्रोसीजर्स सीखते हो.
सो देर इज सो मच टू इट। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक पीआरपी इंजेक्शंस हम लोग कर रहे हैं। पहले बोला जाता था ये सब रिसर्च में हो गई रिसर्च, अभी हम कर रहे हैं, ये पेशेंट्स को बेनिफिट हो रहे हैं और हम लोग खुद कर रहे हैं सारे प्रोसीजर्स, और पेशेंट्स को कितनी सारी चीजों से आराम मिल रहा है। सो दीज आर ऑल प्रोसीजर्स विच आर डन इन ओरल मेडिसिन स्पेशलिटी। एंड इफ कमिंग ऑन टू द अदर साइड, दैट इज रेडियोलॉजी। सो IOP एंड ऑल दैट इज डन इन एट द BDS लेवल, वो अभी MDS लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अभी जो इंपॉर्टेंट होता है वो बेसिक तो आप लर्न करते ही हो, बट देन यू आर वर्किंग ऑन द एडवांस टेक्निक्स। CBCT आपको एकदम से स्पेशलाइज्ड होना जरूरी है, बिकॉज नाउ इट इज पीपल आर ओपनिंग CBCT सेंटर्स। कोई भी एक भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं हो रहा है विदाउट एडवाइजिंग अ प्री ऑप CBCT, चाहे एक सिंपल इम्प्लांट केस हो, चाहे कोई भी Important सर्जिकल for केस हो। legal also. The legal aspect may be Yes, yes, important. for that. And ये mandatory है that the reporting has to be done by an oral and maxillofacial radiologist। तो वहां पे आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है, बिकॉज सेंटर्स बहुत ज्यादा हैं, उनको चाहिए ओरल रेडियोलॉजिस्ट, और हर कोई ट्रेंड नहीं है। पहले के करिकुलम में CBCT होता ही नहीं था, अभी के करिकुलम में है। तो आपको तो इतना यूनिकली ट्रेंड होना है इस एक एडवांस मोडालिटी पे, कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको आप अटैच रहोगे रेडियोलॉजी सेंटर के साथ, दैट इज फॉर श्योर। बट देन आप टेली रेडियोलॉजी की तरह आप घर बैठकर, आपको अलग अलग सिटी से सेंटर्स आपको भेजेंगे अपने केसेस कि ये हमारी इमेजेस हैं, प्लीज इसकी रिपोर्टिंग करिए। आपको घर बैठे रिपोर्टिंग करके आपके जो भी आपके चार्जेस हैं करके आपको करना है। उसके लिए आपको बहुत ही वेल वर्स्ड होना है इस प्रोसेस के, इस If you प्रोसीजर्स are और good, इन basically you get attached to multiple diagnostic यस। centers and do reporting. That's a good uh, option of, you can say, earning एंड money. ऑल्सो Sir, you were talking about people opening clinic, doing general dentistry. Can you throw some light on this aspect? Like, how good or bad is the proposition number one of oral medicine radiology MDS pass out to start a clinic? yes. Okay. Uh, for this thing, I want to tell you one thing, that there are many people जो already काफी साल से practice कर रहे होते हैं, and then they think कि चलो अब हमें post graduation करना है, तो let us take a lighter branch like oral medicine and radiology. So I know such people, those who have taken oral medicine and radiology. While they were practicing, they thought of taking a break. They'll do the post graduation and then they'll start again. एंड उन लोगों के साथ अगर आप कभी बैठेंगे तो आप देखेंगे कि उनका पर्सपेक्टिव क्लिनिकल प्रैक्टिस का चेंज हो चुका है, एंड दे हैव सेड कि हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस और इम्प्रूव हुआ है, बिकॉज उनका डायग्नोसिस पार्ट स्ट्रांग हुआ। सो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप एज एन ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजिस्ट आप बहुत अच्छे से अपना जनरल डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओपन अप योर क्लिनिक, यू विल प्रैक्टिस जनरल डेंटिस्ट्री, आपने BDS अच्छे से किया हुआ है, और बाकी के ओरल मेडिसिन के प्रोसीजर्स, चाहे वो इंटरलेशनल इंजेक्शंस हो, मेडिसिन हो, या वट एवर हो, वट ऑल लेजर्स हो जो आप करते हैं वो आप करेंगे। साथ में जनरल डेंटिस्ट्री आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा लगता है कि नहीं हमें लिटिल बिट प्रैक्टिस की जरूरत है, सो वंस यू विल ओपन योर क्लिनिक, थोड़ा टाइम लगेगा, बट विद इन 7-8 मंथ्स आप वेल वर्स्ड हो जाएंगे। आई माई सेल्फ इज एन एकेडमिशियन, मैं कॉलेज में भी एज अ प्रोफेसर भी काम करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ। देन आई हैव माई ओन सेटअप ऑल्सो, और मेरे सेटअप में साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैं एक जनरल डेंटिस्ट्री तो प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ, मेरे साथ ENT सर्जन, पेन स्पेशलिस्ट, एनेस्थीसिया वाले लोग, ओरल सर्जन भी जुड़े हुए हैं। हम लोग मिलकर एक पूरा एक हमारा एक टीम है, जो हम इन पेशेंट्स को जो स्पेसिफिक केसेस हैं ओरल मेडिसिन वालों को ट्रीट करते हैं। तो आप जनरल मेडिसिन प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हैं ओरल मेडिसिन करके। मैं एक यही तो सीधे बोलता हूँ कि एंडोडोंटिस्ट भी तो इन द एंड अगर अपना क्लिनिक खोलेगा तो बाकी सारे प्रोसीजर्स करेगा ही ना। ये तो नहीं है दैट दे विल बी ओनली परफॉर्मिंग एस्थेटिक डेंटिस्ट्री और एंडोडोंटिक प्रोसीजर्स, इन द एंड एक्सट्रैक्शन भी करेंगे, राइट? एक पेरियोडोंटिस्ट भी RCT करेगा। सो आई ऑलवेज से कि And आप one जनरल question तो which करते comes ही in हैं। this aspect is like after 3 years of MDS in OMR, definitely a student will feel I'm out of touch of endo, prosto, maybe extractions. So how to cope up with that pressure or thing? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर इफ यू हैव डन योर डेंटिस्ट्री BDS करिकुलर कोर्स नाइसली, तो आप कभी आउट ऑफ फील्ड टच फील करेंगे ही नहीं, राइट? और जो स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स केसेस हैं उसके लिए तो आप स्पेशलाइज्ड जो लोग होते हैं उनको बुलाते ही हैं। बट हाँ, अगर आपको स्टिल लगता है, सो देयर आर सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया। आजकल तो हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस इतने सारे सेटअप कोर्सेज करा रहे हैं, ज्वाइन दोस कोर्सेज फॉर सम टाइम, एंड आपको
क्या ही टाइम लगेगा टू डू इट। सो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ओरल मेडिसिन कर कर आप बिल्कुल आउट ऑफ टच प्रैक्टिस से नहीं होंगे, बल्कि आप तो बहुत ज्यादा पेशेंट्स के साथ टच में रहेंगे। और आपका प्रैक्टिस देखिए, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज यू आर, आप लोगों की बातें सुनते हैं तो आप नहीं समझ पाते, बट बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड, माई फ्रेंड्स आर देयर, माई कुलीग्स आर देयर, दे आर डूइंग अ वेरी गुड प्रैक्टिस आफ्टर डूइंग ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। और एस्पेक्ट्स भी हैं। सी, डेफिनेटली लोग को लगता है कि भाई ओरल मेडिसिन करके हम एक कॉलेज में ज्वाइन हो जाएंगे, हम पढ़ा लेंगे, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी के लिए वो सिनेरियो चेंज हो गया है। डो यू आर नॉट, शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर एकेडमिक्स ओनली, College दैट यू हैव, यू jobs. विल जॉइन अ कॉलेज और आपको बस एक फिक्स सैलरी मिलेगी और आपका घर चल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। डेफिनेटली एकेडमिक्स इज इंटरेस्टिंग, आपको शौक है पढ़ाने का, आपको यंग जनरेशन के साथ, सबके साथ इन टच रहना है, तो बहुत अच्छा है। आप ग्रो करते हो, आपकी नॉलेज ग्रो करती है। मैं तो खुद एकेडमिक्स में हूँ, एक वन ऑफ द बेस्ट इंडिया के कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग, बड़े लोगों के साथ काम करता हूँ, तो आई नो कि इस चीज से हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बट इन द एंड यू हैव टू ओपन अप योर क्लिनिक। आपको अपना जनरल प्रैक्टिस जरूर करना है, जरूर करिए। और स्पेशलाइज प्रैक्टिस तो जरूर, अपनी ब्रांच की प्रैक्टिस तो जरूर करिए, साथ साथ जनरल प्रैक्टिस भी करिए। आप कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे या आपको लगेगा मैंने क्या डिसीजन किया और मैंने क्यों ये ब्रांच किया। इसके अलावा मैं एक बात बताता हूँ, रिसर्च एस्पेक्ट ओरल मेडिसिन का बहुत अच्छा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपने एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का ही देता हूँ। अभी डॉक्टर अभिलाष, अभी ही जस्ट पास हुआ है, और पास होते ही उसकी आईसीएमआर में जॉब लगी है। इज वर्किंग विद द अमृता ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आईसीएमआर का लेप्रेसी पे प्रोजेक्ट है, जिसपे वो एज एज अ साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वर्क कर रहा है। एंड That's great, sir. मतलब निकालते इंटरव्यू में उसी को सेलेक्ट किया गया, बिकॉज हमारी ब्रांच इज लिंक्ड विद मेडिसिन। और आईसीएमआर के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो मेडिसिन और मेडिकल फील्ड के साथ रहते हैं। रेडियोलॉजी की फील्ड्स हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, या फिर देखिए लेप्रेसी में, बिकॉज आपका ओरल कैविटी भी इन्वॉल्व है। तो ये एक जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, सैलरी स्केल्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, उसके लिए भी आपके लिए ब्रांच बनी है। आप आइए और इस ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। वन ऑफ अनदर ऑफ माय पीजी, वो यूएस में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, वहां पर भी शी इज प्रोजेक्ट, शी इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट एनालिस्ट है, एंड शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब देयर आल्सो। वहां पर भी उसको बहुत अच्छे से रिसर्च में बहुत सारे मौके मिले हैं करने के। तो अगर आपको इंटरेस्ट है रिसर्च में जाने के लिए, तो ये एक फील्ड आपके लिए, इस यहाँ पे पीजी करने के बाद ये फील्ड भी आपके लिए खुला है, और आप What you are एक talking is, एक्सपर्टाइज sir, फील्ड में। actually, thank you for this insight because ये बात ना कोई करता ही नहीं है. To be very frank, I have seen a lot of videos. I hope, I'm sure you also must have gone through these opinion. PG करना है, that is one aspect of a BDS graduate कि I am doing MDS. But another big aspect is what after that MDS. How एंड that ऑल्सो how that pass out is going to earn money, grow as a professional in the field. वही So तो इम्पोर्टेंट है। और मैं तो ये yes, भी बताना चाहता हूँ छोटी सी बात, कि आप किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में जाइए, आप कैंसर के पेशेंट्स को ऑन्कोलॉजिस्ट मैनेज तो कर पाते हैं, बट जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो ठीक है, दे आर ट्रेन्ड, बट ओरल कैविटी के रिलेटेड एक जेरोस्टोमी को ट्रीट करना कितना आसान है, ये आप और हम एज डेंटल सर्जन जानते हैं कि एक सिंपल जेरोस्टोमी ट्रीट करना टफेस्ट जॉब है। और अगर वो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी रिलेटेड हो तो और टफ हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी आप पढ़ते हैं, आप करते हैं, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं। बस आपको आना चाहिए कैसे अप्रोच करना है, कब राइट टाइम पे आपको जाना है, और आपको अपनी अपनी प्रेजेंस फील करानी है। उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है और अपनी ब्रांड से प्यार करना है, और ये समझना है कि जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। basically, if an oral medicine pass out wants to have a good career flourishing in terms of monetary aspect, name, fame, prospects, so number one option is he should pursue towards opening a clinic. अगर यस, ओपनिंग, वेरी मच। if clinic open कर रहे हो, you are learning maybe add-on skills like aesthetics or implants, then you are adding a boom to your own profession. Plus यस, definitely you are getting collaborated with जो सर ने बोला multiple radiology centers for tele यस, reporting and all. That is a good source स्पेसिफिकली of income. सीबीसीटी। यस, एंड CBCT हो एमआरआई गया, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अब MRI, प्ले yes sir. करने वाला है रोल, आप भी जानते हैं, फॉर Then आने वाले टाइम। yeah, TMJ pain has become a lot of common thing because of disruption in occlusion everywhere आज की डेट में. Then I have referred many cases to sir. Even like two of my patients I sent from
My house and सर का जो कॉलेज है, सो भारती डेंटल कॉलेज, है exact 100 kilometer apart. But still, two of my patients were like adamant to show to an expert, so I referred to him for TMJ pain, which is clicking. One was clicking case, another was severe pain, young patient. So this is the value of a good oral medicine and radiologist in the country. फिर आपने बोला सर कि another so good sources for going into research projects whether in India or abroad. Or last option, if you are lucky enough or you are too adamant to enter into a dental college, definitely you can apply and wait for your turn. That's great, Yes. sir. A lot of things can be coming up on this aspect. Another thing, सर, जो बड़ा ही एक अजीब सा सिनेरियो लेके चलते हैं हम, कि एक पीजी पास आउट हो गया immediate, मतलब what students are asking me nowadays is, that is why we are coming into these sessions which are, I have named them ugly truth, कि वो कड़वा सच जो हर कोई नहीं बता रहा। इमीडिएट पास होते ही मुझे ये सब ऑप्शंस आपने बताए, क्लिनिक हो गया, रिसर्च हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर टेली रेडियोलॉजी सेंटर्स हो गए, डायग्नोस्टिक सेंटर्स। व्हाट इज द क्राइटेरिया कि मुझे इन सब में एब्जॉर्ब किया जाएगा? लाइक हाउ विल, like how to ascertain that whether I will be able to get absorbed in any of these streams? एक ही क्राइटेरिया है, यू शुड बी स्किल्ड इन टू एस्पेक्ट्स। whenever you're doing post graduation, do it wholeheartedly, devotedly. Learn everything from your mentors, from your guides. Second, Very you true, sir. should learn these skills. Mastery you should have on how you talk to people, right? The confidence that you have, वो आपके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस होगा, that will only lead to the success. वो आपको हमेशा आपको लेके जाएगा आपकी सक्सेस की तरफ। आप अपने पेशेंट से कैसे बात करते हैं, आप किसी इंटरव्यू में कैसे बात करते हैं, आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप कितना ज्यादा प्यार कर रहे हैं अपने अपने से, अपनी ब्रांच से, वो आपको हमेशा सक्सेस करने में, सक्सेसफुल होने में हेल्प करेगा। तो ये एक की है। और whenever I repeat, whenever you do post graduation in oral medicine and radiology, please study करिए। आप कॉलेजेस को फाइंड आउट करिए, आप देखिए कौन कौन से लोग हैं अच्छे जिनके अंडर में आपको स्पेशलाइजेशन करना है। बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस हैं, देखिए देर आर सेवरल कैटेगरीज ऑफ कॉलेज। आई एम नॉट नेमिंग एनी कॉलेज, बट हाँ ये है, वी हैव ए ग्रेड कॉलेजेस, वी हैव बी ग्रेड कॉलेजेस। बी ए ग्रेड कॉलेजेस वो है जो आज भी इसमें भी अपने, दे नो कि उनको अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। They are hiring good faculties. They have good faculty who's full time teaching properly. They are devoted Ashwet towards Medical their College. students. And then we have कॉलेजेस जहाँ विजिटिंग फैकल्टी है, जहाँ टीचर्स को बस आना है अपना, ठीक है, टाइम पास किया, शाम को अपना क्लिनिक देखना है। पीजीज भी ऐसे ही मस्ती में कर रहे हैं। उन कॉलेजेस से कभी भी ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन मत करिए, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं सीखेंगे तो आप आने वाली जनरेशन को भी यही बोलेंगे कि कुछ नहीं है। इट इज ओनली पार्ट कि आपको केस हिस्ट्री लेनी That है, is कुछ applicable to क्या नहीं every सीखेंगे। branch, but definitely a branch like OMR, which requires a lot यस, of learning, good learning curve you will have in 3 years. So you एग्जैक्टली। cannot एंड यू afford शुड to हैव do from a स्पेसिफिक, एग्जैक्टली, एंड यू शुड हैव स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ पेशेंट्स। अगर पेशेंट्स नहीं होंगे तो आप क्या सीखेंगे? तो यू शुड हैव दोज अमाउंट ऑफ पेशेंट्स, गुड पेशेंट्स। एंड देन मैंने एक वो बोला था ना, वी शुड हैव एन medical अटैच्ड college मेडिकल साथ कॉलेज। में होगा, वेरी that is a, इंपॉर्टेंट। yes sir, very important. So that is तो वो great, एक sir. रिसर्च करने का फील्ड है। So one thing, you all those who are watching this video and planning to do MDS in any stream and especially OMR, listen to sir very carefully and note down in your mind and soul. You have to fall in love with the branch as fast as possible. Carry forward that love for 3 years, especially, and then rest of your life, because that is going to give you more success. ओके, नथिंग एल्स। लाइक अगर आप एक ब्रांच ज्वाइन करने के बाद यू कीप ऑन क्रिबिंग कि प्रोस्तो ले लेता, ऑर्थो ले लेता, ओएस, ट्रस्ट यू मी ऑन दिस, प्रोस्तो लेके भी आपने दुखी रहना था, ओएस लेके भी आपने और दुखी होना था, तब आपको लगता है शायद ओएमआर ज्यादा अच्छा है। This करेक्ट। is happening every day. We have been into this segment for last 19 years of MDS education, and we have seen all sorts of PGs and all sorts of MDS passing out. That is why, sir, with so much of experience, is telling you, if you love your branch, if you love your studies, if you fall in love with the system of education you are into, growth अपने आप मिलेगी आपको. Nobody can run like snatch the success coming in your path.
Anything else, sir? जाते जाते कुछ आपको लगे Just like what a exactly small, yes, will two, will three be lines helpful more. for all the viewers? यस, तो दो तीन लाइन और मुझे बस ये बोलना है दैट प्लीज अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिस ऑफ डेंटिस्ट्री इज जस्ट नॉट अबाउट प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक दैट टू ऑगमेंटिन एंड एनी एनाल्जेसिक दैट इज जस्ट जेरोडोल. आई एम यूजिंग दिस टर्म बिकॉज ये सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है वॉट एवर रीजन. Prescribing antioxidants or just prescribing multivitamin. It has much more to it. And this you will only learn when you will practice medicine, when you will practice oral medicine. And yes, just to see a mere IOPA, you are not doing PG in oral medicine and radiology. You are going towards advancements of maxillofacial imaging that will help you to achieve success in life. मन से करिए, दिल से करिए, अच्छी जगह से करिए, अच्छे लोगों के अंडर में करिए, सीखिए सब्जेक्ट को, उससे प्यार करिए. कोई नहीं रोक सकता आपको. आप सक्सेसफुल भी होंगे, पैसे भी कमाएंगे, खुश भी रहेंगे, प्राउड भी फील करेंगे, सब कुछ करेंगे. पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए. नेगेटिव लोग तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, क्या है ये, बेकार है बेकार है बेकार है. नेगेटिव people will make you negative. Positive people will That make you is the positive. reason on many students' demand, I have invited you and thanks for you for accepting this session. We are recording this at very late night today. And this is one of the reason, like everybody who knows Dr. Sumit sir, सब कोई भी बोलेगा, you are in love with your branch. You are excellent in your branch. You have a command of the subject. You have done a lot of patients. You that shows the confidence of talking. Thank you again, sir, for this session, valuable time and your input, insight on the oral medicine and radiology, which is like least understood amongst many BDS graduates across the country. थैंक यू सो मच. एंड ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स. मन से करिएगा. और एंड वेन एवर यू थिंक आप ओरल मेडिसिन में कर रहे हैं, एंड इफ आई कुड बी ऑफ एनी हेल्प टू यू ऑल, प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी. एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन. मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी ब्रांच के लिए कुछ बोलकर. अच्छा, थैंक यू सो Thank you, मच. sir.